everyone, welcome back to my channel Judiciary Vibes. Those who are new to my channel, please subscribe and share my videos if it is beneficial to you all. So without wasting time, let's begin with today's topic. Today I will be discussing with you all about All India Bar Examination, which is going to be held on 31st October. So I will be talking about two things: do's and don't do's for this exam and last minute preparation of this exam. So let's start. As we all are aware about new guideline of BCI, so first let's discuss about what we need to do. You have to carry admit card, photographs, any ID, there is Aadhaar card, PAN card, whatever you have, and barracks with short notes which is allowed. And most importantly, don't forget to carry your bar council advocate ID, in which state you have registered yourself as an advocate in bar. And don't lose, you all know, no books allowed, no notes allowed, mobile or electronic gadgets not allowed. So the most important which I wanted to share with you all is about this Bear Act. Bear Act is allowed, but what kind of Bear Act is allowed, this is very important to understand, and this is very important to know which Bear Act we can carry. तो मैं आप लोग के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कौन से Bear Act आप ले जा सकते हैं एंड कौन से Bear Act आप नहीं ले जा सकते हैं. See, these are the Bear Acts which I have with me. Different publication Bear Act, Universal, EBC, PM Bakshi and other. First I'll start with the Universal because most of the students they have this Universal Bear Act only. It's already written here, Bear Act with short notes. Here. See, like this is evidence Bear Act. Only sections are mentioned and short comments. So this kind of Bear Act is allowed. Obviously we can take it, this illustration and all. Only comments, short comments and illustration. So these kind of Bear Acts are allowed, obviously. And one more I have this one, PM Bakshi. This is the constitution. See, in this Bear Act, in the beginning it is written notes on preamble. So obviously it is not allowed in the exam. So don't take such kind of Bear Acts जहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह दिया हुआ है. इसे कॉन्स्टिट्यूशन केस में सब कुछ लाइक इसलिए यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं कि आप मेंस वगैरह में आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है. तो ये सारे Bear Acts अलाउड नहीं होंगे. अब ये एक है मेरे पास EBC का कॉन्ट्रैक्ट का Bear Act है. ये रिसेंट वाला है, 2021 का है. इसमें भी ऐसे ही है, थोड़े थोड़े नोट्स हैं यहाँ पे. इसे शॉर्ट टाइटल है केस लॉज एंड एप्लीकेबिलिटी. ये सारे अलाउड हैं. जैसे छोटे से नोट्स दिए हुए हैं, फ्री कॉन्सेप्ट, ये सब वो मना नहीं करेंगे, वो हम लोग एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं. बट येस, ये इन सब टाइप के Bear Acts जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने देखा, इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स दिया हुआ है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है. ये सब तो ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं करेंगे और इतना उनके पास टाइम भी नहीं होगा चेक करने का. बट स्टिल हम खुद से ही थोड़ा प्रिपेयर होकर जाएँ, अवॉइड करें. एक और है, ये मेरे पास CRPC का है, एम्बिशन का है. ये जैसे है, इसमें पूरा जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेक्शन है, इसे पूरा मीनिंग, नोट्स, केसेस वगैरह सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली इसमें दिया हुआ है. ये पूरा एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बना है Bear Act, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ, नोट्स वगैरह, फिर पूरा फुल एक्सप्लेनेशन. तो ये सब अलाउड नहीं होंगे. तो मेरे ख्याल से ABC हो गया, कॉमर्शियल Bear Acts कुछ आते हैं, यूनिवर्सल के हो गए, दीज ऑल वी कैन कैरी. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, तो ये सब वी कैन कैरी. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट लास्ट मिनट प्रिपरेशन फॉर AIB 16. जब पहले रूल था कि Bear Acts एंड विद शॉर्ट नोट्स नॉट अलाउड, तो मैंने खुद ही थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया था एग्ज़ाम के लिए. पहले मैंने क्या किया कि टारगेट फॉर IQ करके एक चैनल है, आई थिंक आप सबको पता होगा. टारगेट फॉर IQ करके एक चैनल है यूट्यूब पे. तो उन्होंने पूरे मतलब आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर AIB का उन्होंने डाला हुआ है उस पर. तो मैंने वो सारे 10 साल के पूरे 10 ईयर्स के PYQs मैंने सॉल्व कर लिए थे. वो सब आधा घंटा, कोई आधे घंटे, कोई 40 मिनट के ऐसे हैं. 2 से 3 दिन लगा मुझे, इससे ज़्यादा नहीं लगा.
बट अब तो टाइम है नहीं आपके पास पीवाई की सॉल्व करने के लिए. सो आई जस्ट टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. पहला मैं आपको बताऊँ इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया. पहला तो ये लैंडमार्क क्वेश्चंस पूछते हैं, लैंडमार्क केसेस सॉरी. सेकेंड सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज डॉक्ट्रिन्स और रूल्स. डॉक्ट्रिन्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट में होता है प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी है थोड़े थोड़े. तो यही 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा करना है. कुछ सेक्शंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में. मतलब 10 साल के मैंने क्वेश्चन किया, कम से कम 10 बार तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे 10-12 सालों में. जैसे कुछ बेयर एक्ट्स हैं जो हमेशा ही मुझे हम लोग को काम लगे हुए हैं. जैसे CRPC हो गया, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, IPC, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, जो हम लोग के कॉलेज टाइम में पढ़ाए गए हैं. तो ऑब्वियसली सबके पास ये सारे बेयर एक्ट्स हैं. अब बात आती है उन सारी चीज़ों की जो हमारे पास बेयर एक्ट्स नहीं हैं. जैसे एडवोकेट एक्ट हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम वेजेज एक्ट, ये सारे हम लोग के पास नहीं हैं. IT एक्ट भी लगभग लोगों के पास नहीं है. कभी कभी काम लगा तो हम लोगों ने ज़ेरॉक्स करा लिया. तो ये सारे बेयर एक्ट्स तो आप ले सकते हैं, बट स्पेशली पर्टिकुलरली फॉर दिस एग्ज़ाम नो वन इज़ गोइंग टू बाय एडवोकेट एक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स, मिनिमम वेजेस, IT एक्ट्स, ये सब. तो CRPC से मैंने देखा है मोस्टली जो पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर्स हैं वो ही, मतलब पोस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है वही ज़्यादा पूछे हुए हैं. या पोस्ट ट्रायल जैसे समन केसेस में इशू ऑफ प्रोसेस का, ये सारे कुछ कुछ पूछे हुए हैं. अटैचमेंट का, वारंट का, इन सब का थोड़ा थोड़ा पूछा हुआ है. CPC में वो प्लेंट वगैरह पूछा हुआ है, मैक्सिमम भर भर के पूछा हुआ है. इंडिजेंट पर्सन प्लेंट वगैरह अमेंडमेंट प्लेंट में कैसे कर सकते हैं, ये सब. कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, इमरजेंसी का पूछा हुआ है थोड़ा थोड़ा. और ये लेजिस्लेचर वगैरह थोड़ा बहुत पूछा हुआ है. एक जगह केवल पूछा हुआ है, 10 साल का मैंने सॉल्व किया, एक ही जगह केवल पूछा हुआ है स्टेट का डेफिनेशन, और कहीं नहीं. एविडेंस में भी ये जितने भी पोस्ट ट्रायल में काम आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, को एक्यूज का स्टेटमेंट, ये सारे. IPC में तो ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ या फिर प्रॉपर्टी, यही सब ज़्यादा पूछा हुआ है. तो ये सारे तो आप बेयर एक्ट नहीं भी ले जाएंगे तो भी लगभग जो इनको बेसिक नॉलेज होगा वो कर ले जाएंगे. बट अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एडवोकेट एक्ट से ऑब्वियसली हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर्टिफिकेट फॉर प्रैक्टिस के लिए. वी आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम फॉर दिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. सो एडवोकेट एक्ट की कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो रिपीटेडली टाइम एंड अगेन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. 6, 7, 8 बार पूछे गए हैं. तो वो सेक्शन मैं आपको यहाँ पे नोट करा देती हूँ. सेक्शन से जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ, आप एग्ज़ाम के पहले बस वही 4-6 सेक्शन से जो रिपीटेडली पूछे गए हैं आप वही देख के जाइए. श्योर 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा. वो सारे प्रोसीजरल थोड़े से हैं तो वहीं से आएगा. ये सारे वो सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं. सेक्शन 16 इट टॉक्स अबाउट सीनियर एडवोकेट. सेक्शन 23 इट टॉक्स अबाउट राइट टू प्री ऑडियंस. सेक्शन 24 इट टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट. सेक्शन 35 ये है मिसकंडक्ट या उसके लिए एडवोकेट को क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, बार काउंसिल का क्या पावर है. सेक्शन 36 एंड 37 ये है कि कोई भी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है बार काउंसिल में उसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, ये भी वही है, विद इन 60 डेज अपील करना है. तो यही इतनी सारी प्रोविजंस हैं जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं. तो मैंने सोचा कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू ऑल जो भी ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. मैंने तो ऐसे ही प्रिपेयर कर लिया है क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में ऐसे ही आने वाला है. अब बात आती है अदर लॉज की. IT एक्ट से एक सेक्शन पूछा हुआ है, सेक्शन 154. ये बार बार पूछा गया है. इट टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक. बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, इट्स नॉट गुड. तो ये सेक्शन 154 है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक. और एक और पूछा गया है सेक्शन 70
सेक्शन 70B ICERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये भी पूछा हुआ है बहुत बार। तो ये 2 सेक्शंस प्लीज़ आप देख के जाइए। अभी इस बार को तो नहीं बता सकते, बट पिछले 10 साल में ये बहुत बार, ये दोनों सेक्शंस बहुत बार पूछे गए हैं। लेबर लॉ से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप देख लीजिए। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। प्लीज़ मैं जो बताते जा रही हूँ वो आप एक नोट कर लीजिए एक जगह पेज में। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल, आई एम श्योर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जहाँ से ये एक ही चीज़ बार बार पूछा हुआ है, वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हु इज़ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये 3 चीज़ ही केवल पूछा हुआ है, वर्कमैन, लॉकआउट एंड ले ऑफ। ये ही 3 चीज़ है जो बार बार पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन है कि टीचर्स वर्कमैन में नहीं आते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ये आप याद कर लीजिए, बहुत बार ऑप्शन दे कि पूछा हुआ है ये। उसके बाद मिनिमम वेजेस से एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ वेजेस, या फिर व्हाट इज़ मिनिमम वेजेस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। बस फैक्ट्रीज एक्ट का एक ही क्वेश्चन पूछा है, वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, और कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। फैक्ट्रीज एक्ट से केवल यही एक पूछा हुआ है, वेलफेयर ऑफिसर, ये सेक्शन 49 में। जो मैं नोट कर रही हूँ प्लीज़ आप नोट कीजिए, इट विल हेल्प यू 100%। कंपनीज एक्ट में एक ही चीज़ पूछा हुआ है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही पूछा हुआ है सेक्शन 135, या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, यही पूछा हुआ है। बार बार 135 सेक्शन पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड कंडीशंस फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ये ही 3 टॉपिक है जो कंपनीज एक्ट में घुमा घुमा के पूछा हुआ है। 10 साल का मैंने सॉल्व किया है, आप भी एक बार देखेंगे एंड देन यू विल रिमेंबर व्हाट एवर आई हैव सेड। यही 3 चीज़ पूछा हुआ है, एंड अदर चीज़ें तो सारे एक्ट्स तो पढ़ नहीं सकते, बट येस दीज आर द थिंग्स विच आई वॉज थिंकिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू ऑल। तो आप लास्ट मिनट में आप थोड़ा थोड़ा करके यही सब देख सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ की। कोई पता है जनरल या ओबीसी का है 40%, SC और ST का है 35%। तो ये इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप जो भी मैंने बताया एक बार आप उसको देख लीजिए, और अपने लेवल से भी इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर। बट जो भी मैंने बताया इससे ज़्यादा नहीं आया एग्ज़ाम में, मैंने 10 साल का सॉल्व किया हुआ है। आपको फिर से अगर एक बार देखना है देन यू कैन गो अगेन। सॉरी फॉर द मिस्टेक एंड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक। वो जो चैनल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट वो है जुडिशियल, दिस दैट चैनल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे 10 years का क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, पहले मैंने सॉल्व किया है। सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू ऑल। ये मेरे कुछ जो मैंने लैंडमार्क केसेस के ऐसे नोट्स थोड़ा बना लिए थे, 1-liner टाइप। सो इफ़ यू वांट आई कैन ड्रॉप दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन सी ऑल दिस लैंडमार्क केसेस। ये वही के मैंने यहाँ पे वही नोट डाउन किए जो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, एडवोकेट एक्ट, यहाँ सबसे जो कई बार पूछे गए हैं। IPC वगैरह से भी कई बार पूछे, इन्वायरमेंट से भी 2-4 केसेस जो इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछे गए हैं। तो इफ़ यू वांट आई कैन ड्रॉप दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक, इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू लाइक my video, if it is helpful, then like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.